Namaskar student. Today we are doing the question answers chapter number 2 from economics, people as a resource. In earlier section we have seen the 4 part of this chapter in which I have explained all things. So today I am explaining the question answers according to your NCERT book. So question number 1 is what do you understand by people as a resource? कि आप क्या समझते पीपल एज अ रिसोर्स? आंसर इज पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे knowledge and skill technology to do so. This is why human beings are considered a resource. It is ability of human beings which help in the transferring the physical material into the valuable resources. Now in first chapter we have discussed about the factors of production, in which the last factor was the human. Just because human resource is a resource which create the more other resources by the help of their knowledge, skill and technology, क्योंकि human ही एक ऐसा रिसोर्स है जो बाकी रिसोर्सेज को यूज़फुल बनाता है. People as a resource is a way to referring a country working people in term of their existing productive skill and ability. कंट्री में जितने भी लोग होते हैं जो वर्क करते हैं, जितने भी लोग वर्क करते हैं, इसमें हमने किया था जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं. The ideas of people as a resource is linked to the concept of the human capital, that is the stock of skill and productive knowledge embodies of the population. Any production of goods and services require the presence of the 4 factor of production, namely land, labor, physical capital and human capital. This we have discussed in the previous chapter. The knowledge and the enterprise provided by the human capital puts together and other 3 factors of productions and output. Population become an asset instead of a liability when the investment are made in the form of education, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. कि कब कोई भी ह्यूमन रिसोर्स तब बनता है जब उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. सो दिस इज़ अबाउट द व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीपल एज अ रिसोर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हाउ इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम रिसोर्सेज लाइक land and physical capital? Answer is human resource make use of other resources like land and physical capital to produce an output. The other resources cannot become useful on their own. This is the reason why the human resource is considered to be the superior of to the other resources. क्योंकि एक human resource है जो बाकी resources का use कर सकता है. बाकी जितने भी नेचुरल रिसोर्स दे आर नॉट यूज इटसेल्फ, अपने आप उनका यूज़ नहीं होता. इंसिस द ह्यूमन कांट इंटरफेयर इन दैट रिसोर्सेज. सो ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट सुपीरियर रिसोर्सेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन in the human capital formation? Role of education, we are talking about the education. Answer is human capital refers to the stock of skill and productive knowledge embodied in a population. Proper education and training enable to formation of human capital. An educated population is a asset. Asset means sampatti, a resource. And in contrast to the uneducated and untrained, educated individual makes efficient use of available resources and opportunities. अगर आप एजुकेटेड हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है,
और अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो उस रिसोर्स को उतनी ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. Education and skill are major determinants of the earning of any individual market. Education enhances the quality and quantity of individual productivity, which in turn added to the growth of the economy. एजुकेटेड मेंबर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की प्रोडक्टिव उनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एंड दे आर प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. Aware of the benefit of education, educated person help in its preparations. The advantage of an educated population is spread to even those who themselves are not educated. यानी कि जो भी सर्विसेज होती है एजुकेटेड पीपल की, वो सिर्फ अपने लिए नहीं होती, वो ऐसे कई लोगों को सर्विस देते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्टर एक रिसोर्स पर्सन है, वो हर एक पर्सन को ट्रीट करता है, उसका इलाज करता है, चाहे वो एजुकेटेड है चाहे वो एजुकेटेड नहीं है. इसलिए जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है वो अपने आप में क्या है, एक रिसोर्स है. हैंस एजुकेटेड पीपल बेनिफिट द सोसाइटी एज अ होल. यानी अगर एक पर्सन एजुकेटेड है तो पूरी सोसाइटी का उसको क्या मिलता है, उसे उसका बेनिफिट मिलता है, यानी सोसाइटी को उससे फ़ायदा होता है. दिस एजुकेशन प्लेज द रोल ऑफ द कैटलिस्ट इन द ट्रांसफॉर्मिंग अ ह्यूमन बीइंग इनटू अ पॉजिटिव असेट एंड द प्रीशियस नेशनल रिसोर्स. इसलिए एक एजुकेशन पर्सन किसी भी कंट्री के लिए एक प्रीशियस रिसोर्स है जो इकोनॉमी को क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन capital formation? In previous question we have discussed about the education. Now question is about the health. Human capital refers to a stock of skill and productive knowledge embodied in a population. This skill and productive knowledge is provided with the help of the proper education and training. However, the benefit of education alone do not lead to the create of human capital. अब हम बात करें कि एजुकेशन की, सिर्फ एजुकेशन से ही प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है. However, the benefit of education alone do not lead to a creation of human capital. A human capital which is educated but unhealthy cannot realize its potential. अगर वो एजुकेटेड ही है और अगर वो हेल्थी नहीं है तो वो अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर पाता. एन अनहेल्थी पॉपुलेशन इज़ द लाइबिलिटी एंड नॉट एन असेट. वो बोझ बन जाता है, कभी भी संपत्ति नहीं बनता कंट्री के लिए. हैंस हेल्थ इज़ द इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर द रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग. इसलिए हेल्थ की उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस एजुकेशन की है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. What part does health play in the individual's working life? किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है वो किस तरह से रोल प्ले करती है उसकी वर्किंग लाइफ में. आंसर इज़ द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल हेल्प हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड ऑल्सो गिव्स हिम द एबिलिटी टू फाइट इलनेस. कोई भी हेल्थी पर्सन है उसका पोटेंशियल जो है बढ़ता है, क्योंकि एक हेल्थी पर्सन जो है उसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इलनेस से फाइट करने की एबिलिटी होती है उसमें. एन अनहेल्थी इंडिविजुअल इज़ अ लाइबिलिटी टू हिज प्लेस ऑफ वर्क. और एक कहीं कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं कोई भी एजुकेटेड हैं लेकिन वो हेल्थी नहीं है तो वो उस इंस्टीट्यूशन के लिए या वर्क प्लेस के लिए क्या बन जाते हैं, लाइबिलिटी यानी बोझ बन जाते हैं. द हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज एफिशिएंसी. यानी कि हेल्थ से उस पर्सन की क्या रिलेटेड होती है, एफिशिएंसी. And compared to an unhealthy individual, a healthy person cannot work more efficiently and with the greater productivity. क्योंकि कोई भी पर्सन जो अनहेल्थी है वो ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाता, ना ही उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है. इसलिए
किसी भी पर्सन का हेल्थी होना बहुत ही कंपलसरी है किसी भी चीज़ के लिए, रिसोर्स बनने के लिए. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. What are the various activities undertaken in the primary sector, secondary sector and tertiary sector? We have done this part in the lecture number 1 of this chapter. Primary sector comprise activity related to the extraction of production of natural resource, mining कह सकते हैं इसे, agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and the quarrying are the activity undertaken in this sector. Now secondary sector comprise activity related to the processing of the natural resources. Manufacturing is included in this sector. Tertiary sector comprise activity that is provide support to the primary and secondary sector through the various services, trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, insurance, etc. are the example of the tertiary activity. You can watch the part number 1 of this chapter again. I have explained all activities, economic activity in the detail. Now question number 7. What is the difference between economic activities and non-economic activity? Now answer, activity that add value of the national income are called the economic activity. जिनकी भी national income increase होती है, उसकी value होती है, उसको हम क्या कहते हैं, economic activity. These have two parts, market activity, production for play or profit, and non-market activity, production for self-consumption. These things also I have explained in the part number 1. Now non-economic activities are the ones that do not add to the national income. For example, an individual performing domestic chores. यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं ये मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी, उसमें यही डिफरेंस है. फर्स्ट मार्केट एक्टिविटीज़ डन बाय द प्रोडक्शन पे ऑफ प्रॉफिट, उसे सेल किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है. नॉन मार्केट एक्टिविटी में सिर्फ सेल्फ कंजप्शंस के लिए वर्क किया जाता है. हमने इसमें एग्जांपल लिया था फार्मर का. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क? लो पेड वर्क क्यों वुमेंस को मोस्टली वर्क के लिए लो पेड यानी कि कम सैलरी दी जाती है कंपेयर टू द मैन? आंसर इज education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. यहाँ पे एजुकेशन और स्किल्स जो मेन डिटरमाइन है ड्यू टू द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है. वुमेन आर जनरली डिनाइड द एजुकेशन एंड द नेसेसरी स्किल टू बिकम द वर्थली कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द नेशनल इनकम. क्योंकि हमारी सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वुमेंस को एजुकेशन उतनी नहीं मिलती जितनी मैन को मिलती है, बॉय को मिलती है, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है नेशनल इनकम में. Then as a result, majority of women have migrate education and low skill formation. This is one of the reason why they get the paid less than men. इसलिए उन्हें बहुत कम सैलरी दी जाती है मैन से. Also the proportions of the gender prejudice, such a woman can not do as much physical work as a man, पुट वुमेंस एट अ डिसएडवांटेज. और ये भी सोच होती है, प्रिजुडाइज होती है. प्रिजुडाइज मीन्स व्हेन वी फिक्स इमेज, पर्टिकुलर इमेज फॉर द पर्सन, कि वुमेन ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर सकती, ऐसी सोच है. ऐसा कुछ भी नहीं है. वुमेन आजकल हर वो वर्क कर सकती है जो एक मैन कर सकता है. तो ये जो प्रिजुडाइज है उसकी वजह से वुमेंस को कम सैलरी दी जाती है सेम वर्क के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. How will you explain the term unemployment? Now about the unemployment, part number 4. Answer is unemployment is a situation in which people who are able to willing to do work at the going wage and cannot find job. कोई व्यक्ति एजुकेटेड है, हेल्थी है, दे आर इंटरेस्टेड टू डू वर्क बट दे नॉट फाइंड जॉब, उसको वर्क नहीं मिलता, उसे हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट.
any individuals is terms is the unemployed if he or she is a part of the workforce of a country and is capable and willing to do work for payment but is unable to do so। कि हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, कंट्री की वर्कफोर्स का पार्ट है, काम भी करना चाहता है लेकिन वो ये करने में अनेबल होता है क्योंकि उसे वर्क नहीं मिलता। Now question number 10 is what is difference between disguised unemployment and seasonal unemployment? This question I have explained in the part 4 of this chapter. First was the unemployment and types of unemployment. So first is disguised unemployment. It is a situation in which an individual appear to be unemployed but appear to be employed but does not add to the productivity. This productivity is same even he in absent। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि एक ही जैसे फील्ड में, हमने फार्मर का एग्जांपल लिया था, एक फील्ड में जिसमें सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है और उसमें 10 लोग वर्क करते हैं, लगता तो है वो 10 लोग क्या है, एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें से 5 लोगों को हटा भी दिया जाता है तो उनकी प्रोडक्टिविटी पर, उस फील्ड की प्रोडक्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज़ द disguised unemployment. Example, when a work that requires only 3 individuals for it only and its completions to being done by the 5 person, लेकिन 5 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोगों की ज़रूरत है और 5 लोग वर्क करते हैं, एंड 2 एडिशनल्स आर, और वहाँ पे 2 एडिशनल, यानी कि अगर वो 2 लोग अलग से कोई वर्क करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन ये सब किसका पार्ट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। मोस्टली फार्मर्स जो होते हैं विलेजेस में, उनके पास फील्ड होता है, सारी फैमिली के लोग उसमें वर्क कर रहे होते हैं, चाहे उनकी ज़रूरत होती है या फिर नहीं होती है, तो ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का क्या है, पार्ट है। सेकेंड इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल इज़ नॉट फाइंड द जॉब सर्टन मंथ ऑफ द ईयर। जब किसी इंडिविजुअल को कुछ महीने काम होता है, यानी कि फार्मर्स है 6 मंथ उसके पास क्रॉपिंग्स का काम होता है, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो वो कुछ मंथ क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयड। इसमें एग्रीकल्चर लेबर्स आएंगे, फाइंड आउट पर्सनस दैट इज़ शोइंग हार्वेस्टिंग वीडिंग, यानी कि ये सब वर्क करने के बाद कुछ मंथ वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और इस ड्यूरेशन में वो बाकी के कुछ वर्क करने लगते हैं, कंस्ट्रक्शंस का वर्क करने लगते हैं, डेयरी का वर्क करने लगते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। सो फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन सी द पार्ट नंबर 4 of this chapter. I have explained all things in the detail. You can write the answers from there also. Question number 11, what are the educated unemployment is the peculiar problem in India। कि uneducated जो uneducated unemployment है वो एक peculiar problems क्यों है, बहुत गंभीर समस्या क्यों है इंडिया के लिए। If disguised unemployment characterizes rural India, educated unemployment is the peculiar problems of the urban India। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की, तो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, दिस इज़ द सिचुएशन वेयर इन अ नंबर ऑफ यूथ with the matriculations, graduations, post graduation, matriculation बोलते हैं 10th पास को, graduation, post graduation degrees are not able to find the suitable job। जब इतने सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको काम नहीं मिलता। The education system is such that even after about the 18 years of education, a person can well be termed as a unskilled। अब देखिए इतना एजुकेशन के बाद भी, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वो उसके पास काम नहीं होता है। what this does is that a large number of unskilled educated youth get the churn out the educational institutions year after year, but only a fractions of them are able to find the suitable job। हालांकि दिन ब दिन इनकी जो नंबरिंग है बढ़ती जा रही है, लोग एजुकेशन ले रहे हैं, डिग्रियाँ ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस उन्हें डिग्रीज हर साल प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, काम नहीं होता, उनको जॉब नहीं मिलती है। Among the remaining
सम रिमेन अनएम्प्लॉयड, कुछ को जॉब मिलती है कुछ को नहीं मिलती है, वाइल अदर गेट एम्प्लॉयड इन द एक्टिविटीज़ दैट सीम द इनएजुकेटेड एज पर देयर पोटेंशियल। और कुछ लोग तो वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो उनकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं होते, यानी वो वर्क करने लग जाते हैं, एजुकेटेड लोग भी, जो वो नहीं करना चाहते हैं। This in turn leads to a wastage of the use amount of the resources that had been spent on educating them। यानी कि उस रिसोर्स का क्या हो जाता है, मिसयूज़ हो जाता है, जिनके पीछे इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है वो सारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is in which question number 12 can you suggest some measure in the education system to mitigate the problem of the educated unemployment। अब measures इसमें कुछ पूछे गए हैं। फर्स्ट इज़ मेक एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल मोर कैरियर ऑप्टेन, कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए एजुकेशन में, एजुकेशन को सेकेंडरी लेवल पर कैरियर ऑप्टेन बनाया जाना चाहिए, विच वुड द इंडिविजुअल्स विथ नॉट ओनली एजुकेशन बट ऑल्सो द रिक्वेस्ट स्किल फॉर द गेनिंग सक्सेसफुल अनएम्प्लॉयमेंट। उन्हें ऐसा कुछ स्किल का वर्क, मैनुअल वर्क सिखाना चाहिए जिससे वो अपना खुद का भी वर्क कर सकें। Second is create a short of the screening process whereby the each individual choose subject that suit his or her personality। सब्जेक्ट को लेकर चूज़ इंडिविजुअल होना चाहिए कि आपकी जो पोटेंशियल है, जो एबिलिटी, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क को क्या कर सकें, चूज़ कर सकें। द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूअर सब्जेक्ट एंड फील्ड ऑफ स्टडी एट द स्कूल लेवल शुड बी accompanied by the growth of job opportunity in the sector that would employ and the student electing the study much subject। यानी सब्जेक्ट को लेकर चूज़, यानी सब्जेक्ट को लेकर कई सारे ऑप्शंस होने चाहिए स्टूडेंट्स के पास, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज़ कर सकें, और हर सब्जेक्ट में उनको एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में, यानी कि उस सब्जेक्ट करने के बाद क्या क्या उनके करियर ऑप्शंस है उसकी गाइडलाइन मिलनी चाहिए। Now question number 13, which capital would you consider the best, land, labor, physical capital and human capital? Why? सबसे जो मेन कैपिटल है वो कौन सी है, यहाँ पे हमने बात की थी 4 फैक्टर्स की प्रोडक्शन की, तो चारों में कंपेयर बताया गया है। इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल को। Human capital makes use of the other resources like land, labor, physical capital to produce an output. The other resources cannot become useful on their own. Hence, human capital may well be considered the best among of the all resources। सबसे important resources human, क्योंकि वही बाकी resources का use करता है। Now question number 13 and question number 14, 15. 14 and 15 is the activity based questions, imaginary based questions। इसको आपको इमेजिन करना है। 14 is can you imagine some village which initially had no job opportunity but later come up with the many। ऐसी कोई विलेज का हमें यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देना है जहाँ पर कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन बाद में उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आई। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ विच कैपिटल वुड यू कंसिडर द बेस्ट। ये हमने अभी किया। कौन सी कैपिटल है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है ह्यूमन कैपिटल। 13 क्वेश्चन इज़ कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स टू ये एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि आपकी जो मोस्टली जो क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द NCERT बुक इज़ कम्प्लीटेड। We will do more question answers, MCQ, short question answers of this chapter in the next class. So students, thank you so much. Read this all PDF, and I have explained all question answers. Thank you student.